Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in the last class we have already completed the exercise number 12.3 and today we will be starting a very new exercise, that is 12.4. And in this particular exercise, students, we are going to learn about the applications of algebraic expression. So let's start with the application, students. When we are using the algebraic expressions, then it means that we can use that particular expression in the formulas, right students? So firstly, if we want to find out the parameter of some figure, for example, say we are talking about using algebraic expressions for parameter formulas, right students? So we know that this is a triangle, right? And say it is an equilateral triangle that is having all its sides equal to each other, right? If this is length L, if this side is having a length L, then all the lengths will be equal to L, L and N, right? Because it is an equilateral triangle and every side of that particular triangle is equal to each other. Alright students, what is the formula of finding out the parameter of the triangle? That is, add all the three sides, that is side into 3. Why this is so? When we are talking about equilateral triangle, then it is equals to 3 multiplied by side, that is 3 multiplied by L, that is 3L. Alright students, then it means that whatever be the length of the equilateral triangle, you should multiply that thing with 3 and then you will be having your parameter of equilateral triangle. So students, based upon this particular algebraic expression, you can easily find out the parameter of equilateral triangle. Have a look. The parameter of an equilateral triangle is equals to 3 into length of its side, right? If we donate the length of the side of the equilateral triangle by L, then the parameter of equilateral triangle is equals to 3L. Alright students, this is what we have discussed till here, right? And now students, if I am talking about a square is something that is having all the four sides equal. For example, it is L, then it is also L, then it is also L and it is also L. So what is parameter students? Add all the four sides and it is equals to 4 multiplied by length, that is 4L, right? L plus L, 2L, 2L plus 3L, 3L plus 4L, right? So 4L is the algebraic expression of finding out the parameter of the square, alright? Have a look. Similarly, the parameter of the square is 4L, where L is the length of the side of the square, alright students? Now if I am going to talk about pentagon, regular pentagon students, what do you mean by regular pentagon? It is the pentagon that is having all its sides equal to one another. For example, students, if this particular figure is an octagon, pentagon, right? Okay, students, this is L, it is also L, it is also L, this is also L and this is also L. It has 5 sides and all the 5 sides are equal. So it is 5 multiplied by L, that is 5L. So basically students, when you are given the length and you need to find out the parameter of a regular polygon, then it is equals to number of sides multiplied by length of one side, right students? Number of sides multiplied by length of one side, alright students? So if you have to find out the parameter of a regular pentagon, it is 5L because the pentagon is having 5 sides, alright students? Where L is the length of the side of the pentagon, right students? Have a look at the next thing students. If I am talking about area formulas, ठीक है, जब हमें किसी चीज़ का एरिया निकालना होता है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या पता है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड, राइट? इफ दिस इज अ स्क्वायर, अगर ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला है साइड इनटू साइड. अगर इसका एक साइड कितना है स्टूडेंट्स? L है, तो दूसरा साइड भी कितना होगा? L होगा. And it will be L square and this is required algebraic expression. ठीक है students, देखो, if we donate the length of square by L, then the area of the square is L square, alright? area क्या होगा? L square. अगर यहाँ पे students हम बात करें एक rectangle की, ठीक है, ये length होगा और ये breadth होगा. अब area of rectangle क्या होता है students? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज LB.
So if we donate the length of the rectangle by L and its breadth by B, then the area of the rectangle is L into B, that is LB, which is the required algebraic expression, that is the formula of finding out the area of the rectangle. Right students? Looking at the next part, if we are talking similarly, if B stands for the base and H for the height of the triangle, then the area of the triangle is B into H upon 2. अब ये क्या है? अगर ये एक triangle है students, right? और ये उसका हाइट है फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइट को मैं h लिख रही हूँ, बेस को मैं b लिख रही हूँ, तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो अगर मुझे बेस पता है कि b है, हाइट पता है h है, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? b इंटू एच, बी एच upon this 2. This is the formula for area of triangle. Alright students, तो ये बहुत ही important चीज़ें हैं जब भी हम बात करते हैं areas का और perimeter निकालने के बारे में. Right students? Now we are talking about some rules for the number patterns. कि अगर हमें कोई number दे रखा है, for example, suppose we have a number n, which is a natural number, right? What is a natural number students? That is starting from 1, 2, 3, 4 up to so on, right? So students, whenever I am talking about a natural number, then its predecessor is always n minus 1, right? And its successor is always n plus 1. It's a basic rule in the number pattern, you can say. For example students, this n is 4, ठीक है? तो उसके आगे वाला नंबर क्या होगा? 4 plus 1, that is 5, right? 4 के बाद में 5 ही आता है, और उससे पहले क्या आता है? 3 आता है ना, हमें पता है 3, 4, 5. 4 के बाद में क्या है? 5. 4 से पहले क्या है? 3. अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे 4 है, -1, that is 3. आ गया ना? 3, 4, 5. Whenever this is a natural number, then its successor is always n plus 1. This is its successor, and its predecessor is always n minus 1. Right students? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि if a natural number is donated by n, its successor is n plus 1, right? We can check this for any natural number. For example, let any natural number be 10, then its successor is n plus 1, that is 11, right? Which is known. हमें सब पता ही है कि अगर कोई natural number 10 है तो उसके बाद वाली चीज़ क्या होगी? 11 होगी, जो कि होगा 10 plus 1 से ही, right students? ये तो था प्रेडिसर या सक्सेसर का. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ किसी ऑड नंबर के बारे में या फिर किसी इवन नंबर के बारे में स्टूडेंट्स, तो अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैंने n लिया और मैंने इसको बोल दिया कि ये इवन नंबर है, ऐसे तो नहीं होता ना. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, 5 क्या इवन नंबर है? नहीं है. मुझे अगर सर्टेनिटी के साथ बताना है, बहुत श्योरिटी के साथ बताना है कि ये एक इवन नंबर है, देन मुझे क्या करना होगा? इवन नंबर स्टूडेंट्स हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, ऑलवेज, राइट? तो आई शुड मल्टीप्लाई दिस n विद 2 सो दैट मेरे पास एक श्योरिटी आ जाए कि दिस इज एब्सोल्युटली एन इवन नंबर, नो चांसेस ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर बाय दिस. ऑलराइट, सो दिस इज ऑलवेज एन इवन नंबर, राइट? n का वैल्यू चाहे अब इवन हो या फिर n का वैल्यू अगर ऑड हो, बट ये नंबर हमेशा इवन नंबर ही आता है. देखो फॉर एग्जाम्पल n को यहाँ पे आप लो 5 और यहाँ पे n को लो 6, राइट? ये n क्या है? ऑड है, और ये वाला n क्या है? इवन है. ट्राई करते हैं, पहले इवन वाले के लिए ट्राई करके देख लेते हैं. 2n लाइक 2 into 6 दैट इज 12. क्या आ रहा है? इवन आ रहा है ना? फेयर इनफ, बात सही होगी हमारी. अगर यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे 2 into n की जगह पे 5 पुट किया, इट इज 10. अभी भी क्या आ रहा है? इवन आ रहा है. तो मतलब हमारी ये चीज ट्रू होती है किस केस के लिए? जब वी आर कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ इवन नंबर, राइट स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव टू टॉक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑड नंबर, बट श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ऑड ही हो, तो अब क्या करोगे आप? जहां पे 2n क्या होगा? इवन होगा. अब 2n पक्का इवन है, तो इवन के बाद वाला नंबर क्या होता है? ऑड होता है ना हमेशा. फॉर एग्जाम्पल 0 इवन है तो 1 ऑड है, 2 इवन है तो 3 ऑड है, 4 इवन है तो 5 ऑड है, ठीक है?
तो इसी तरह 2n+1 जो होगा वो हमेशा ऑड होगा, ठीक है। इसी के साथ आप करके देख लो ना, एक बार कंफर्म करने के लिए। एक बार हम लेते हैं n1 जो कि है एक ऑड नंबर, और एक बार हम लेते हैं n = 2 जो कि है एक इवन नंबर, राइट स्टूडेंट्स। पहले n = 1 के लिए करके देखते हैं। 2 × 1 + 1 that is 2 + 1 students that is 3। अब 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। सिमिलरली हैव अ लुक एट हियर, 2 × 2 + 1 that is 4 + 1 which is 5। 5 भी क्या है स्टूडेंट्स, एक ऑड नंबर है। तो ये भी देखो, कोई भी आप n का वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ऑफ n के लिए इट विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर, ठीक है। सो दैट इज वाई if I'm talking about a number system, then 2n is always even and 2n+1 is always odd, ठीक है। So if a natural number is denoted by n, 2n is an even number and 2n+1 is an odd number, ठीक है। Let's check for it any number, say 15, then 2 × 15 that is 2n, 2 × 15 is 30 which is an odd number, right, which is an even number, right। And if I'm talking about 2n+1, 2 × 15 + 1 that is 30 + 1 that is 31 which is an odd number, all right students। तो इसी के साथ हम बता सकते हैं कि even number कैसे कंसिडर कर रहे हैं हम और odd number कैसे कंसिडर कर रहे हैं with the help of algebraic expression, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कुछ पैटर्न्स की, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स की, अपार्ट फ्रॉम द नंबर पैटर्न्स, फॉर एग्जाम्पल सम मोर नंबर पैटर्न्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर टेबल और मल्टीपल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर डिजिट, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है कि 4 का मल्टीपल बताना है, ठीक है। तो 4 का टेबल कुछ इस तरह से होता है ना, 4, 8, 12, 16, 20 अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर मुझे 4 का nth टर्म बताना हो, ठीक है, तो आई विल डू इट लाइक दैट। 4 का कोई भी मल्टीपल दैट इज 4n, कि n की किसी भी वैल्यू के लिए अगर मुझे 4 का मल्टीपल देखना है देन इट इज 4n। सिंपली जिसका देखना है उसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना था कि 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं। इफ n is 1 that is we have to find out what is the first multiple of 4, right, then put n is equals to 1 that is equals to 4। सबसे पहला मल्टीपल 4 का खुद 4 ही होता है, ठीक है। देन अगर मुझे बताना हो कि 4 का टेबल अगर मैं बात कर रही हूँ तो 4 के टेबल पे 10th टर्म कौन सी आती है, तो 4 × 10, यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट की है 40। मतलब अगर हम मल्टीपल चला रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 10th नंबर पे क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम देख रहे हैं कि 4 × 100 मतलब 100th नंबर पे कौन सा आएगा, दैट इज 400, राइट स्टूडेंट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर नंबर का नंबर पैटर्न क्या है या उसके मल्टीपल्स क्या हैं, ठीक है। हैव अ लुक, लेट अस नाउ लुक एट अनदर पैटर्न ऑफ नंबर्स, दिस टाइम विदाउट एनी ड्राइंग टू हेल्प अस, ठीक है। लाइक 3, 6, 9, 12 अप टू 3n। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 के टेबल की, ठीक है। The number are such that they are multiples of 3 arranged in increasing order beginning with 3. The term which occurs at the nth position is given by the expression 3n. मतलब कि जो भी टर्म nth टर्म पे आएगी ना तो मतलब उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 3n होगा, वो 3n के इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि 3 के टेबल पे 10th टर्म कौन सी है, देन 3 × 10 30, ठीक है, ये देखो। और अगर 100th पोजिशन की बात कर रही हूँ तो 3 × 100 दैट इज 300, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत ही इजी चीज़ थी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। क्या देखा अभी तक, देखते हैं। कोई नेचुरल नंबर अगर n है तो उसका सक्सेसर हमेशा n+1 होता है, ठीक है, और उसका प्रेडिसर क्या होता है, हमेशा n-1 होता है, ठीक है, राइट। अगर 2n क्या है स्टूडेंट्स, एक इवन नंबर है, तो 2n+1 क्या होगा, हमेशा एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। प्लस अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये कि अगर हमें किसी भी टेबल का मल्टीपल निकालना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 का मल्टीपल देखना है हमें, ठीक है। 3 का मल्टीपल देखने के लिए 3 × n दैट इज 3n करो, ठीक है। अगर 10 का मल्टीपल देखना है फॉर एग्जांपल आपको, ठीक है, 10 का मल्टीपल देखने के लिए स्टूडेंट्स 10 × n करना पड़ता है, दैट इज 10n, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है जिसकी हेल्प से आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और ये चीज़ें आपके थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर लाइफ एंड स्टडी काम आती हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे हम,
some patterns in geometry, some geometrical patterns you can say, ठीक है. Whenever I am talking about a quadrilateral, quadrilateral is something that is having 4 sides, right? अब मुझे बताओ कि अगर अब एक quadrilateral के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम बात करें quadrilateral के बारे में, तो उसके एक वर्टेक्स से कितनी डायगोनल्स ड्रॉ हो सकती हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? दिस इज अ quadrilateral because it is having 4 sides, 1, 2, 3 and 4. अगर मैं A की बात कर रही हूँ तो A इज अ वर्टेक्स. अब मुझे बताओ कि A वर्टेक्स से मैं कितने मैक्सिमम डायगोनल्स ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है. मैक्सिमम डायगोनल्स मतलब, डायगोनल का मतलब क्या होता है कि वो नेबरिंग वर्टेक्सेस के साथ मीट नहीं करना चाहिए, वो ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ मीट करना चाहिए, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर ये सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली एंड ओनली वन डायगोनल इज देयर, ठीक है. सिर्फ एक डायगोनल बन रहा है एक वर्टेक्स से. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पेंटागन, ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए कोई वर्टेक्स है, ठीक है. इधर से मैं कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकती हूँ मैक्सिमम? यहाँ से तो साइड बनेगी, तो एक ये और एक ये, तो मैक्सिमम कितने? 2. इट इज हेक्सागन. अब यहाँ इस वर्टेक्स से मैं कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकती हूँ? 1, 2 and 3. हैव अ लुक, दिस इज 3. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर मेरे पास एक और फिगर हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट अ हेप्टागन. हेप्टागन क्या होता है? जिसकी कोई भी 7 साइड्स होती हैं, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट स्टूडेंट्स. अब अगर यहाँ पे मैं मान लूँ कि ये A है, B, C, D, E, F and G. A से बताओ कि कितने डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? एक ये, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि B के साथ तो ये ऑलरेडी अटैच्ड है ना, ठीक है. तो कौन कौन से डायगोनल स्टूडेंट्स देखो, ठीक है. तो कितने डायगोनल्स ड्रॉ हुए स्टूडेंट्स? 1, 2, 3 and 4, राइट. 4 डायगोनल्स दैट कैन बी मैक्सिमम ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, सिंगल वर्टेक्स. यही यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स. द नंबर ऑफ डायगोनल्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन. पॉलीगन दैट इज अ पॉली मीन्स नंबर ऑफ साइड्स एंड गन मीन्स साइड्स, ठीक है. वन वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन ऑफ n साइड इज 3 minus n minus 3. अब ये क्या है कि अगर किसी भी पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम मैक्सिमम कितने डायगोनल्स एक वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं? दैट इज इक्वल टू n minus 3, ठीक है. अगर हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, फर्स्टली अब एक एक करके इन चारों की बात करते हैं. फर्स्टली अगर मैं बात कर रही थी क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है. क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं. तो n क्या ले रहे हो यहाँ पे आप? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है. चेक इट फॉर हेप्टागन फॉर एग्जाम्पल एंड ऑक्टागन बाय ड्रॉइंग फिगर्स, राइट स्टूडेंट्स. तो अगर हमें बात करी हूँ कि n नंबर ऑफ साइड्स है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए कितना हुआ ये? 4 minus 3 दैट इज 1. हैव अ लुक, एक वर्टेक्स से आप एक ही डायगोनल ड्रॉ कर पा रहे हो, तो मतलब ये सच है ना. किसके लिए? क्वाड्रिलेटरल के लिए. सिमिलरली अब बात करो आप किसके लिए? पेंटागन के लिए. n minus 3, 5 minus 3, 2. सच है ना, 2 ही, एक वर्टेक्स से आप 2 ही डायगोनल ड्रॉ कर पा रहे हो. अब नेक्स्ट बात करो n minus 3, कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं. 6 minus 3 दैट इज 3. तीन ही ड्रॉ कर पा रहे हो ना डायगोनल्स आप, राइट, एक वर्टेक्स से. अब इधर हेप्टागन की बात करो. हेप्टागन में कितनी साइड्स है? n minus 3. n कितनी है? हेप्टागन मतलब हेप्टा 7, ठीक है. 7 minus 3 दैट इज 4. अब यहाँ पे एक वर्टेक्स से हम मैक्सिमम 4 ही डायगोनल्स ड्रॉ कर पा रहे हैं ना. तो इसका मतलब ये बिल्कुल सच है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स इज इक्वल्स टू n minus 3, ठीक है. यहाँ पे तो हमने बात की है हेप्टागन की. यहाँ पे हमें बोला गया कि हमें ऑक्टागन के बारे में भी बताना है कि ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स होती हैं, ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑक्टागन जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, राइट. कितनी होगी इसकी साइड्स? 8. फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, B, C, D, E, F, G and H, ठीक है. अब आप बताइए कि A से हम कितनी डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4,
N5, बाकी सब तो नेबरिंग ही हो गया ना, A और H और A और B तो साइड ही बन रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, राइट। अब n-3 लगा के देखो कितनी साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, 8 - 3 दैट इज 5। दिस इज ट्रू ना, हैव अ लुक, दिस इज कंप्लीटली अ ट्रूथ, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ऑक्टागन इट इज 5. 5 number of diagonals can be drawn from any one vertex of the octagon, right students? Students, when I'm talking about triangles for example, अब एक ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, n-3, 3 - 3 दैट इज 0। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से आप डायगोनल ड्रॉ ही नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि ये अगर एक ट्राइंगल का वर्टेक्स है फॉर एग्जाम्पल A, B और C, या तो इसके अंदर आप B के साथ मिलाओगे या इसके साथ C के साथ मिलाओगे, ठीक है, दोनों ही केसेस में तो साइड बन रही है ना, डायगोनल तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई भी वर्टेक्स से आप 0 डायगोनल्स को ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 3 साइड, ठीक है, द नंबर इज 0। ऑब्जर्व दैट द डायगोनल्स ड्रॉन फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स डिवाइड द पॉलीगन इन एज मैनी non-overlapping triangles as the number of the diagonals that can be drawn from the vertex +1। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पॉलीगन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पॉलीगन को आप कुछ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स जो कि आपस में ओवरलैप ना करें, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, कितनी ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हो, दैट इज इक्वल टू जितने एक वर्टेक्स से आप डायगोनल ड्रॉ कर पा रहे हो +1, ठीक है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल है फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर A वर्टेक्स से मैं सिर्फ एक ही डायगोनल ड्रॉ कर पा रही हूँ ना, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A के डायगोनल में ड्रॉ कर पा रही हूँ +1, ठीक है, तो मतलब क्या आ गया 2। तो मतलब इस पॉलीगन को मैं 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर पाती हूँ सिर्फ और सिर्फ, दिख रहा है ना आपको 1 और यहाँ पे 2, विच इज कंप्लीटली ट्रूथ। बात करते हैं पेंटागन की। एक पेंटागन 2 तरह से डिवाइड हो सकता है, 2 डायगोनल्स जा सकते हैं एक वर्टेक्स से, 2 डायगोनल्स जा सकते हैं +1 दैट इज 3। तो मतलब पेंटागन को आप 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 1 2 और 3। ऑब्वियस है कितना, देखो इसके बारे में बात कर रहे हो अगर फॉर एग्जांपल हेक्सागन के बारे में, हेक्सागन के एक वर्टेक्स से कितनी ज़्यादा डायगोनल्स जा सकती हैं, 3 + 1 दैट इज 4। तो मतलब हेक्सागन को आप 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 चीज़ें देखी हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में, नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द polygon is equals to n-3 where n is the number of sides, and how many triangles that can be divided in a polygon which is non-overlapping triangle is equals to number of diagonals that can be drawn from any one vertex +1, ठीक है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यही था हमारे लिए 12.4 का कंसेप्ट। इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। कल हमारा ये जो चैप्टर है 12 कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स डू प्रैक्टिस हार्ड, विल बी मीटिंग इन योर नेक्स्ट क्लास डूइंग द क्वेश्चंस, राइट। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।